Hello students, in this video we are going to start chapter number 4, materials, metal and non-metals. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ, ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ 4.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੋ ਗਈ। ऑब्जेक्ट्स लिखे ने ਜਾਂ मटीरियल लिखे ने आयरन, कोल, सल्फर, एलूमीनियम, कॉपर। ਹੁਣ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਾਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਰਨ ਆ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਾਈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਡਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਫਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਯੂ ਨੇਮ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਆਰ ਮੈਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਟੇਬਲ 4.1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਟਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਟਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਨੇ। ਮੈਟਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਲਾਸ 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੇਬੀ 6th ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ, ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਕਲਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਲ ਦੈਟ ਲਸਟਰ ਐਂਡ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਰਿਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਸਟਰ ਮੈਨੇ ਚਮਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ 1 by 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਸੀਨ ਅ ਬਲੈਕਸਮਿਥ ਬੀਟਿੰਗ, ਬਲੈਕਸਮਿਥ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਕਸਮਿਥ ਬੀਟਿੰਗ ਐਨ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਔਰ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਲੈਕਸਮਿਥ ਕੀ ਆ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਲ ਜਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਔਨ ਬੀਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਸ਼ੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੁੱਡ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਚੇਂਜ ਇਫ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀਟ ਅ ਵੁੱਡ ਲੋਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਲੋਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਇਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੇਕ ਅ ਸਮਾਲ ਆਇਰਨ ਨੇਲ, ਕੋਲ ਪੀਸ, ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਥਿਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਟ ਦੀ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਹਿਟ ਹਾਰਡ ਹੀਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਹਿਟ ਹਾਰਡ ਦੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਇਰ ਆਲਸੋ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਰਿਪੀਟ ਦੀ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਕੋਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈਡ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ। ਜਾਂ ਲੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਲੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਨੇਲ
जो चेंज हो जाती शेप ਉਹਦੀ फ्लैट हो जाता जब ब्रेक इन पीसिस आ। आयरन नेल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो ये तो नहीं भी टुट जाता छोटे छोटे पीसिस नहीं होंगे, फ्लैटन हो जाता। तो लिखांगे फ्लैटन। कोल पीस की आ जो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बीट करते हैं तो वो टुट जाता छोटे छोटे पीसिस ਦੇ ਵਿੱਚ। लिख देना ब्रेक इंटू पीसिस। एलूमीनियम वायर भी फ्लैट हो जाती है। पेंसिल लेड भी ब्रेक इंटू पीसिस। इस तरह तुसीं फिल कर देने। कोई भी बुक का इस तरह का टेबल खाली ना हो, सारे फिल कर लेने। उस तो बाद यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एलूमीनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। इन्हें कह के तुसीं देखिया कि आयरन नेल ते एलूमीनियम वायर जिहड़ी है उसदी शेप चेंज हो जाती जो बीट करते हैं। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इंटू शीट। जे इन्होंने होर हार्ड बीट करिए तो इन्होंने शीट्स दे विच चेंज किया जा सकता। यू शुड बी फैमिलीयर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। सिल्वर फॉयल जी आप स्वीट्स में डेकोरेट करने के लिए उपर लगाई होंगी चांदी जी वर्क जी, वो तुसीं देखिया होना कितनी पतली होंगी। इस तरह एलूमीनियम फॉयल जिन्हें आप चपाती वगैरह रैप करते हैं वो भी कितनी पतलियां होंदियां। तो यह की है मैटल्स ने इन्हों पतलियां पतलियां शीट्स बनाई जा सकती इन्हों दियां। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटल बाय विच दे कैन बी बीटन इंटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। इन्हें तुसीं अपनी बुक दे विच अंडरलाइन कर लेना। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच दे कैन बी बीटन इंटू थिन शीट, पतलियां शीट्स बन जांदियां, वो वाली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। स्पैलिंग देख लेना ये की है। दिस इज़ अ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटल। ये मैटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मैटल नूं इस तरह नहीं किया जा सकता। हुण उहदे आपां डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भी उहदे विचों मैटल किहड़े ने नॉन मैटल किहड़े, जिहड़ा हुणी टेबल आपां डिस्कस कर चुके हैं। कोल ते लैड ये दोनों की ने नॉन मैटल दे विच आ जाते हैं। सिर्फ मैटल ही यह प्रॉपर्टी शो करेगा। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटीरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कैन वी कॉल दिस मैटल? यदा आंसर तुहानूं पता ही लग गया होना। हुण कैन यू होल्ड अ हॉट मटैलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। इन्होंने कहा कि तुसीं कोई भी मटैलिक पैन आ ਉਹਦੇ ਤੇ प्लास्टिक या वुडन का हैंडल नहीं लग्या होया तो तुसीं उहनूं अपने हाथ नाल होल्ड करके रख सकते हो विदाउट हर्ट। परहैप्स नॉट नहीं कर सकते ना, क्योंकि गर्म होंदा जो गैस तो हीट वो ट्रांसफर हो जाती है। पूरा का पूरा मैटैलिक पैन की गर्म हो जाता तो उन्होंने आप हाथ नाल टच नहीं कर सकते। जे तो प्लास्टिक का या वुडन का हैंडल लगा होया फिर तो आप उन्होंने पकड़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं टच कर सकते क्योंकि वो हॉट होंदा। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसिस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। इन्होंने कहा कि एक तो एग्जाम्पल इन्होंने देती मैटैलिक पैन की। इन्होंने कहा कि होर कोई एग्जाम्पल तुसीं रिकॉल करके देखो जिहदे विच प्लास्टिक या वुडन का हैंडल लगा हुंदा जिहड़ा तुहानूं प्रोटेक्ट करके रख सकदा हर्ट करन तो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसिस वट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। फिर इन्होंने कहा कि कंडक्शन ऑफ हीट बारे तुसीं की दसोगे ये बारे। इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वुड ते प्लास्टिक दे विच कंडक्शन ऑफ हीट की है। आप 7th क्लास भी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर इंसुलेटर पढ़िया ही होया। तो ये जिहड़े मैटैलिक पैन ने गुड कंडक्टर ऑफ हीट ने, वुड हो गया प्लास्टिक हो गया बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ने। यू मस्ट हैव सीन एन इलैक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता हो पेचकस जिन्होंने कहते हैं। विच काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, किहड़े टाइप का हैंडल उहदे ते लगा हुंदा। तुसीं देखिया होना मोस्टली प्लास्टिक का हैंडल हुंदा या वुडन हैंडल हुंदा, क्यों हुंदा उहदे ते। लेट अस फाइंड आउट। हुण इन्होंने कहा कि देखते हैं रिकॉल हाउ टू मेक एन इलैक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वैदर इलैक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ऑब्जैक्ट और नॉट। एक इलैक्ट्रिक टेस्ट सर्किट जा बनाना, वो देखना कि इलैक्ट्रिसिटी पास होंगी कि नहीं होंगी ऑब्जैक्ट के विच। यू माइट हैव परफॉर्म, वैसे 6th क्लास भी देखा, 7th भी देखा टेस्टर जहा बनाया। ये एक बैटरी लगाई है, सैल लगाया, बल्ब लगाया, बाकी वायर लगाई ने, तो यह इन्होंने एक आयरन की नील रखी है। तो ये कंडक्शन हो रही है इलैक्ट्रिसिटी की, तो बल्ब के लाइट जग रही है। The activity with various subject in class 6. Now repeat the activity with the material mentioned in table 4.3. 4.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। Observe and group these material into group good conductor and poor conductor। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਸਲਫਰ, ਕੋਲ, ਕਾਪਰ।
आयरन ते कॉपर ही गुड कंडक्टर होंगे, सल्फर ते कोल की है पुअर कंडक्टर होंगे। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस, कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। फिर पहेली ने क्या, ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग और एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मैटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। आ एक्टिविटी तो ये पता लग्या, तो ਜਿਹੜੇ एक्सपीरियंस आप देखे से मैटैलिक पैन वाला वो तो की पता लग्या कि मैटल की ने गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। मैटल की ने गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। इसी तरह मैटल दी प्रॉपर्टीज़ तुसीं नोट करी जानियां भी मैटल किहड़ी किहड़ी प्रॉपर्टी शो करता। पहला आप मेलेबिलिटी वाली देख ली, जिन्होंने बीट करके आप शीट्स बना सकते हैं। दूसरा इन्होंने गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी हो गया। उस तो बाद नैक्सट, वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एलूमीनीयम एंड कॉपर वायर। एलूमीनीयम दी वायर या कॉपर दी वायर कित्थे यूज़ कीतियां जांदियां। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, डेफिनेटली नॉट। उन्होंने कहा कि कोल दी वायर असी कभी देखी नहीं, क्योंकि बनती नहीं वो कोल दी वायर। कॉपर दी वायर बनती है, एलूमीनीयम दी वायर बन सकती है। जिन्हों की वायर बन सकती है वो प्रॉपर्टी बोलते हैं डक्टिलिटी। बीट करके द प्रॉपर्टी ऑफ मैटल, अंडरलाइन कर लेना इस डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिहदे लंबियां लंबियां तारां बनाई जा सकदियां, वो वाली प्रॉपर्टी बोलांगे डक्टिलिटी। ठीक है, मैटल दे विच प्रॉपर्टीज़ होंदी है। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग, ये होगी डक्टिलिटी। 4 हो गए। पहला मेलेबिलिटी पढ़िया, फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फिर इलैक्ट्रिसिटी, फिर डक्टिलिटी। हुण इन्होंने अगला करैक्टर की दसिया, इहदा प्रॉपर्टी की दसी है, डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एंड आयरन शीट। जो आयरन की शीट में ड्रॉप करते हैं ਜਾਂ प्लेट में ड्रॉप करते हैं, मैटल क्वाइन में ड्रॉप करते हैं, तो पीस ऑफ कोल में फ्लोर पर ड्रॉप करते हैं, तो साउंड तुसीं इन्होंने कहा कि ऑबजर्व की, उसका डिफरेंस नोट किया। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, जे नहीं किया कदे तो हुण ट्राई करके देख लो। क्वाइन में थले सिट के देख लो, एक वुड का लोग कोई छोटा जिहा होगा तो उन्होंने नीचे सिट के देखो, उपरों दी नीचे, तो आवाज़ तो पता लग जाएगा भी साउंड किद्दां दी प्रोड्यूस होंदी है। हुण डू यू नोट एनी डिफरेंस इन दी साउंड प्रोड्यूस। फिर इन्होंने कहा कि जी साउंड प्रोड्यूस होंदी है उहदे विच कोई डिफरेंस देखिया तुसीं, डिफरेंस तुहानूं पता ही होगा किद्दां दा होएगा। हुण इन्होंने कहा कि हैव यू सीन वुडन वैल्स इन टैंपल, टैंपल दे विच मंदिर दे विच कदे वुडन दी वैल लगी, घंटियां लगियां होंदियां, हमेशा मैटल दियां लगियां होंदियां, आवाज़ ज़्यादा आती ना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होंदी है। तो वुडन वैल्स इसे करके यूज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें साउंड ज़्यादा शोर वाली नहीं आती, ज़्यादा उच्ची साउंड नहीं प्रोड्यूस होंदी है, यही रीज़न है वह। द थिंग्स मेड ऑफ मैटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨ ਸਟਰਕ ਹਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਸਟਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ 2 ਬਾਕਸਿਸ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, 2 ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਵਿਚ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਮੈਟਲ ਬਾਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਬੋਥ ਦੀ ਬਾਕਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ कि नॉन मैटल का बनया हुआ। सिंस मैटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सैड टू बी सनोरस, ये भी एक प्रॉपर्टी है दी मैटल्स दी। मैटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड विच इज़ कॉल्ड सनोरस। द मटीरियल अदर दैन मैटल आर नॉट सनोरस, जो मटीरियल मैटल तो दूसरे होंगे जो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते उन्होंने आप बोलेंगे नॉट सनोरस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटीरियल आर हार्ड। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਨੋਰਸ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਜਨਰਲੀ ਪੋਜੈਸ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮੈਟਲਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਰਡ, ਲਸਟਰਸ, ਮੇਲੇਬਲ, सख्त होणगे, चमकीले होणगे, शाइनी होणगे, पतलियां शीट्स बन सकदियां, वायर बन सकदियां, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ते इलैक्ट्रिसिटी दे होणगे। ओह वाले जिन्ने भी मटीरियल होणगे वो सारे मैटल होणगे। द एग्जाम्पल ऑफ मैटल आर आयरन, कॉपर, एलूमीनियम, कैल्शियम, मैगनीशियम लिखे हुए हैं। ये तुसीं इस तरह लर्न कर लेने भी किहड़ियां चीज़ां की मैटल दियां ने। इन कंट्रास्ट मटीरियल लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। जो नॉन मैटल होंगे उन्होंने ये सारे करैक्टर ओपोजिट होंगे।
They break down into powdery mass on tapping with the hammer. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metals. The examples of non-metal are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. इसे तरह याद करना जे आ जाता डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन मैटल एंड नॉन मैटल तो यही करैक्टर नू 1 पॉइंट लिख के मैटल्स आर हार्ड दूसरा लिख देना नॉन मैटल आर सॉफ्ट। कुछ एक्सैप्शनस होंदियां ने भी ये कुछ मैटल होंदे ने जिहड़े थोड़े जे सॉफ्ट होंदे ने तो वो कुछ हार्ड होंदे ने वो बाद विच करांगे। हुण मैटल लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट वही इन्होंने कहता भी सोडियम ते पोटाशियम जिहड़े ने मैटल ने पर यह सॉफ्ट होंदे ने। एक्सैप्शनस हमेशा होंदियां हर जगह ही वैसे मोस्टली मैटल की होंदे हार्ड होंदे आ बस एक्सैप्शन ये है कि सोडियम ते पोटाशियम जिहड़े ने वो वाली मैटल सॉफ्ट होंदी है एंड कैन बी कट विद अ नाइफ दे नाल इहनूं कट सकदे हां। मरकरी इज़ द ओनली मैटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टैंपरेचर। मरकरी की है एक इदां दी जिहड़ी लिक्विड स्टेट दे विच हुंदी वैसे ये सॉलिड फॉर्म दे विच हुंदे हार्ड होंदे पर जी मरकरी और रूम टैंपरेचर तो लिक्विड स्टेट दे विच मिलती है सानू ये एक्सैप्शनस ने। कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल एंड नॉन मैटल डिस्कस करेंगे नैक्सट वीडियो के विच। हुण सारा रीड करके देखो फिजिकल प्रॉपर्टी तो पूरा गो थ्रू हो जाए तो जे कुछ नहीं पता लगता फिर आप नैक्सट वीडियो देखा।